So far we have seen the corporate finance, the three major decision: investing, financing, dividend distribution. And basically in the investing part, we thought and we discussed about the capital budgeting, which is about long-term planning. Long-term में कैसा invest करना है? For 10 years, how much will you invest? What should be your future projections? How will you pull it back to the present? ठीक है, तो हमने लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मैनेजमेंट तो कर लिया था, हमने कैपिटल स्ट्रक्चर भी देख लिया, हमने डिविडेंड पॉलिसीज भी देख ली. This is also a kind of corporate finance decision, but at a shorter period of time. In short term, how will we manage our capital, which is known as the working capital thing. So what do you mean by working capital? वर्किंग कैपिटल वो पैसा होता है जो हमें शॉर्ट रन में बिजनेस को रन करने के लिए यूज होता है. अल्टीमेटली इट इज आर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स टू कीप रनिंग आर ऑपरेशंस. एंड बहुत बेसिक सी इक्वेशन है जो assets is equal to capital plus liability. Same applies here. And working capital turns out to be current assets minus current liabilities, because both these are for short term. Current assets जो हमारे पास short term में assets रहते हैं जो इनकम जनरेट करके देंगे, and current liabilities जो हमारी short term financing की needs है. Now if we break down them further, current assets comprises of basically cash जो हमारे पास in hand रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा liquid रहता है, हमारी inventory, are debtors or receivables, and current liabilities comprising of creditors or trade payables. ये सब तो हमने देख लिया. यार वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करना क्यों है? So that we can have an effective management of cash, because cash is the king. How well you are able to manage your cash signifies how well you are able to manage your investing and financing decisions as well. If you have cash ready in your hand, like Apple has, Apple के पास billions of cash, $1 billion of cash होता है, तो अगर उसके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो बेटर इन्वेस्ट कर पाएगा. उसको सोचने का टाइम नहीं लगेगा, उसको कहीं और से फाइनेंसिंग रेज नहीं करना पड़ेगा. अगर उसको कहीं और से फंड रेज नहीं करने पड़ेंगे तो उसको उस पर कॉस्ट की सेविंग्स होगी, राइट? इसलिए कैश पे इतना ज़्यादा एम्फेसिस है. एंड कैश इज द बाय प्रोडक्ट of managing all these activities: managing inventory, managing your debtors, managing your creditors as well. इन सब से ही मिलके बनता है हमारा कैश कन्वर्जन साइकिल, which is how much of your sales is outstanding, how much of your inventory is outstanding, and how much of your trade payables are outstanding. Outstanding in what sense? एक एक पे हम डिटेल में देखेंगे, बट ओवरऑल अगर हम किसी को उधार में कुछ सेल करते हैं, इफ वी मेक सेल्स ऑन क्रेडिट, इफ वी मेक परचेजेस ऑन क्रेडिट, if we have certain amount of inventory in stock, how much does it take to sell all of that inventory? And yet D signifies the days, because cash conversion cycle is made up of days, right? So again, why cash is so much important? Because cash is always prepared, and the faster we are able to convert our operations into a cash is reflecting our efficiency, and to make ourselves self-reliant and not dependent on external sources of finance, right? So let's begin about the inventory part. Inventory is kind of the easiest in all of this in terms of understanding, not in terms of management. मैनेजमेंट में तो ये ज़्यादा क्वालिटेटिव होती है, एंड क्वांटिटेटिव में तो हम ऑपरेशन मैनेजमेंट में देख ही रहे हैं. इन्वेंट्री सेज व्हाट, कि हाउ मच ऑफ योर कैश इज स्टक इन फॉर्म ऑफ परचेजेस. हमारे पास कैश आया, हमने उससे कुछ तो भी रॉ मटेरियल परचेज किया होगा या तो कुछ फिनिश गुड्स परचेज किया होगा, उन सबको हमने स्टोर किया होगा फॉर फर्दर सेलिंग. नाउ अगर इस आइटम को सेल होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ये तो मेरा कैश को स्टक करके रखा है ना. मैंने अपने कैश को यूज़ करके कुछ तो भी मटेरियल बाय कर लिया, अब वो मटेरियल सेल ही नहीं हो रहा. तो हाउ टू फाइंड बैक इट? फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट कि व्हाट इज योर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री टर्नओवर सेज कि व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हाउ मच ऑफ योर गुड्स you bought are actually sold, and what was your inventory. Now why average inventory? Because it is a flow concept. Flow says what, during the year what was your average inventory status. Sometimes it might be happening that you have an abundance of a particular stock keeping unit, sometimes it is in shortage. So overall, to measure for the whole year, you need to do averaging, right? And why cost of goods sold? Because we sell
is cost plus profit, right? But our inventory is at cost only. So to have a similar benchmark, we are taking the goods sold at cost price. यहाँ भी कॉस्ट हो गया, यहाँ भी कॉस्ट हो गया. हमने क्या किया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाला जो हमें ये बताएगा कि इन्वेंट्री का इतना टाइम्स हम सेल कर लेते हैं. ठीक है, अब कितने दिन में करते हैं, तो अज्यूमिंग अ ईयर ऑफ 365 डेज हमें पता चल गया कि इतना हम सेल कर लेते हैं. यहाँ पे कुछ तो भी वैल्यू आ जाएगी, से 7 और 8 डेज में हमारी पूरी इन्वेंट्री रोल ओवर हो जाती है एक बार, राइट. या हमारे पास एट अ पर्टिकुलर टाइम 7 से 8 दिन का इन्वेंट्री रहता है कि हमें उसके बाद फर्दर ऑर्डर करने की ज़रूरत पड़ेगी. Now, how much of inventory, how much of this DIO is good? If it's too high or if it's too low. अगर ये बहुत ज़्यादा है तो दिस सिग्निफाइज कि हम बहुत ज़्यादा अपना सामान बेच नहीं पाते हैं, राइट. अगर हमारे पास बहुत सारे आइटम है जो रखे ही रह जाते हैं जिनको बेचने में से 40-50 डेज लगते हैं, इट्स नॉट अ गुड थिंग बिकॉज योर बिजनेस इज नॉट एबल टू मोनेटाइज ऑन द इन्वेंट्री यू आर मेंटेनिंग. Your stock is piling up, your cash is stuck in those goods, and the opportunity cost you are losing on that amount of cash is very very high, right? So too high तो देख लिया कि बहुत अच्छा नहीं है. क्या too low अच्छा है? It's slightly good, but apart from the cash conversion thing, अगर आप इसको देखोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास शॉर्टेज ज़्यादा होती हो, आपके पास कस्टमर रेडी है जो उस गुड्स को लेने के लिए आ रहा है, बट यू माइट रन आउट ऑफ इन्वेंट्री, यू माइट नॉट एबल टू प्रोसेस अ क्विक ऑर्डर, राइट. एंड टू लो इज गुड ओनली फॉर दोस्त जिनके पास बहुत ज़्यादा SKUs है. थिंक ऑफ डीमार्ट. डीमार्ट के पास तो यार थाउजेंड्स या इवन लैक्स में भी स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हो सकते हैं. स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हर एक आइटम से एक पार्ले जी है, ये 5 का भी आता है, ये 10 का भी आता है, ये 2 का भी आता है शायद, और ये 20 और 1 kg पैक में भी आता है. तो दीज ऑल आर डिफरेंट स्टॉक कीपिंग यूनिट्स. ऐसे हर प्रोडक्ट के कितने मल्टीपल SKUs हो सकते हैं. तो नाउ डीमार्ट क्या चाहेगा, क्या उसके पास एक स्टॉक कीपिंग यूनिट स्टक हो जाए कि उसका फाइनल रोल ओवर जो है दैट शुड बी वेरी वेरी फास्ट. So for a company like DMart who maintains large SKUs, it's good that they have a higher turnover ratio and their day inventory is low. जितना फास्ट हम सेल कर सकते हैं उतना कम हमें डेज लगेगा, उतनी छोटी हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर की साइकिल होगी, राइट. तो ये तो हमने देख लिया कि ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, कम भी सबके लिए अच्छा नहीं है. हाउ टू मैनेज योर डे इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग. डू बेटर डिमांड फोरकास्टिंग. पता करो कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उसके हिसाब से यू कैन मेक ऑर्डर्स फॉर सेल्स, उसके हिसाब से यू कैन परचेज, राइट. प्रोडक्ट रैशनलाइज करो, maintain less amount of SKUs, give less options to the customer, have a better inventory management like just in time. Inventory segment करो. This is ABC means that priority वाला. अगर A गुड्स है जो बहुत ज़्यादा बिकता है तो उसका इन्वेंट्री हाई रखो. C है जो बहुत कम डिमांड में लेकिन स्टिल सेल होता है. So to not to disappoint customers, you should maintain an inventory but at a lower level. इसके हिसाब से आप प्रायोरिटी कर सकते हो. So DIO is more qualitative. You have to think what kind of products or what kind of SKUs are you are maintaining and how much time does it take to sell all of them, right. Coming to this, debtors or trade receivables turnover. Why this is so important? Because we might have made some sales on credit sales which is so much prevalent in tier 2 और 3 cities की जहाँ पे किराना स्टोर होता है, उसको अपना जो सामान है ना वो उधार पे बेचना ही पड़ता है, और एल्स द बिजनेस माइट नॉट रन, राइट. लेकिन इसका भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है. अगर एक पर्सन आज पे कर देगा से ₹1,00,000, वो उस पर कुछ तो भी इंटरेस्ट कमा सकता है. पर अगर इसी पर्सन ने पे किया ही नहीं तो ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ये तो गया. दैट्स वाई maintaining your credit sales and maintaining a good relation with your trade receivables is also an important working capital management decision. So how to calculate the debtors turnover ratio so that you can convert it into the day receivable outstanding? Simple. क्या देख रहे हैं हम, क्रेडिट सेल्स. हमने क्रेडिट सेल्स कितने की एंड ड्यूरिंग द ईयर हमारे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितने से फ्लक्चुएट हुए. डे के ओपनिंग में कुछ और हो सकता है, डे के एंड में कुछ और हो सकता है, इन बिटवीन हमें रिसीव हुआ होगा, हम रिसीव नहीं भी हुआ होगा, बैड डेट भी हुआ होगा. So to nullify all that effect and to have a smoothened estimate of trade receivables, we do the averaging part.
कंपेरेबल हो गए, सेल्स हमने प्रॉफिट मिला के की थी और रिसीवेबल्स भी हमको फाइनल फिगर ही है, नॉट कॉस्ट, इसलिए हमने यहाँ पे सेल्स फिगर लिया, नॉट द कॉस्ट ऑफ सेल्स फिगर। एंड एवरेजिंग क्यू की वो हमने देख लिया। सिमिलरली कैलकुलेटेड द डे रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग, कितने दिन लगते हैं हमको एक पर्टिकुलर डेटर से हमारा अमाउंट रिकवर करने में। बट क्या इसमें भी बहुत ज़्यादा या बहुत कम अच्छा या ख़राब होता है? कॉमन सेंस लगा के सोचे तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव योर कैश इन योर हैंड। अगर हमने किसी को कुछ क्रेडिट सेल्स किया भी है ना, तो वी विल विश कि हमें जल्दी से जल्दी पैसा वापस मिल जाए, राइट? क्यों हम अपना पैसा किसी और के पास स्टक रहने देंगे? सो वी विल विश कि टू लो इज ऑलवेज गुड। Yes, too low is always good. It's great to have because everyone is repaying fast and on time. And you will have cash access for other things. You will not lose the opportunity of converting your cash to something else, right? But having too low of the debtor cycle is bad because you might lose customer. जो हमने local shop में देखा था ना कि you might lose your customer because कोई और अगर उसको credit provide करेगा तो he will shift there and ultimately you will lose the customer. It also happens at a larger scale as well because corporates might have agreements जो उनको credit पे सामान provide करेंगे, credit पे services provide करेगी, and at the end of a particular period they will bill them. Now if you are not providing that billing frequency benefit, they might switch to another venture or vendor who is providing that. What if you have a too high debtor receivable policy? It's a clear cut red flag because customers are not paying you back, your amount is stuck, you might lose so many opportunities because you don't have easy availability of cash. Making too much of your credit sales short on cash for others. Also, the risk of bad debt is very high, right? And like you can promote yourself कि हम एक महीने की credit cycle provide करते हैं, but again risk of default आ जाएगा. So coming to the qualitative things जिनके थ्रू हम डे सेल्स आउटस्टैंडिंग को मैनेज कर सकते हैं। डे सेल्स आउटस्टैंडिंग को मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं? कस्टमर ढंग के चूज़ करने हैं, कमर्शियल डिसिप्लिन मेंटेन करना है, बिलिंग की क्वालिटी होनी चाहिए कि उनको ऑटोमेटिक हो, उनको पॉपअप्स जाते रहें कि आपको टाइम पे पैसे देना है, एंड हैव अ गुड रिलेशन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ लूजिंग योर अमाउंट एंड अपॉर्चुनिटी। सो इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नाउ एज अ कैलकुलेशन ऑल्सो कि अगर हमें हमारा पैसा वापस चाहिए तो क्या हमें डिस्काउंट के बारे में सोचना चाहिए? एक पर्सन है जिसके पास मेरे से 1 लाख रुपीज़ अटके हुए हैं, मैं उसको बोलता हूँ यार मेरे पास ना एक डिस्काउंटिंग पॉलिसी है कि आई विल गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 2% इफ़ यू पे इन 10 days और एल्स 30 days का तो हमारा अग्रीमेंट था ही कि आपको उसमें देना ही है, बट आई एम इन नीड ऑफ माई फंड्स जल्दी, तो मैं तुम्हें 2% का डिस्काउंट देता हूँ इफ़ यू पे मी बैक इन 10 days। सो हाउ टू कैलकुलेट कि हमें कितना इन हैंड आएगा, राइट? And we are providers of discount. We are what? Providers of discount. तो मैं अपना ही पैसा पाने के लिए 2% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो इट्स अ कॉस्ट फॉर मी। नाउ हाउ मच इज द कॉस्ट फॉर मी ऑन पर एनम बेसिस? इट इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कितना हमने डिस्काउंट दिया? 2% का। हमारे पास इन हैंड कितना आया? 98 का। बचे हुए कितने डेज थे? 20, क्योंकि 10 days में तो उसने पे कर दिया, एंड 365 to convert it into per annum. Now, understanding the logic behind each and everything. Why 2? Because मेरी कॉस्ट कितनी है? मेरी पॉकेट से अल्टीमेटली जा कितना रहा है? जा तो कुछ नहीं रहा है, पर 2 रुपये कम तो आ रहा है ना। 100 रुपये पे 2 रुपये कम आ रहा है, इतना कम आ रहा है। अल्टीमेटली इन हैंड आ कितना रहा है? 98 आ रहा है। 365 तो मैंने पर एनम को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया। नाउ दिस 20 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वाई? बिकॉज इफ आई से टू समवन कि पे मी बैक इन विद इन 10 days एंड यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 2%, थिंक कि अगर आपको ये ऑफर मिला है कि 10 दिन में पैसा दे दो, 2% का डिस्काउंट मिलेगा, सो ऑन वॉट डे विल यू पे इट बैक? फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सेवेंथ और 10th? फ्रॉम अ फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू हम पहले दिन ही तो पैसा नहीं दे देंगे, क्योंकि हम सोचेंगे यार कि मैं अगर 9 दिन बाद भी दूंगा तब भी 2% का ही डिस्काउंट मिलेगा, और अगर फर्स्ट डे पे ही दे दिया तो भी 2% का डिस्काउंट मिलेगा। सो वाई नॉट टू कीप इट, वाई नॉट टू कीप अ होल्ड ऑफ कैश फॉर द नेक्स्ट 9 days? मैं उसको अल्टीमेटली ऑन द 10th डे ही पे करूंगा, राइट? तो बचे हुए दिन कितने होंगे? 20। अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे लिखा है कि द अमाउंट इज पेड
on say 6th day. So how many days are remaining? 4. And 4 तो 10 में बचे थे, 30 होने में अभी 24 days बचे, तो यहाँ पे 24 आएगा. These are the number of days left. But using our common sense we assume कि हर कोई on the last day of the discounting period ही पे करता है, इसलिए यहाँ पे 20 यूज़ करते हैं हम. And the overall cost जो हमारी पॉकेट से जा रही है for providing that discount and receiving our money earlier is 37.25% per annum basis पे. हमें तो लग रहा है कि यहाँ पे हमने सिर्फ 2% का डिस्काउंट दिया क्योंकि हमें पैसे जल्दी चाहिए थे, बट पर एनम अगर हम उसे इफेक्टिव एनुअल रेट में कन्वर्ट करें जो कि हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देखा था, सो वी आर लूजिंग आउट ऑन 37.25% पर एनम. जस्ट एन इफेक्टिव कन्वर्जन, नॉट एक्चुअली पॉकेट से कुछ जा रहा है. राइट, तो हमने डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग देख लिया, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग देख लिया. लेट्स कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग, डेज क्रेडिट पेबल. बिकॉज यहाँ पे हमारी पॉकेट से पैसा जाने वाला है, वी हैव टू पे द अमाउंट पे करना है. कितना पे करना है? बिकॉज पे करना चाहते हैं कि हम बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, अगर हमारे पास कुछ कैश आ गया, अगर हमारे पास किसी की उधारी आ गई, तो हम चाहते हैं कि डिले हो यार. हमारी पॉकेट से हम चाहते हैं कि कम से कम पैसा आउटफ्लो हो और डिले से डिले पैसा आउटफ्लो. सो हैविंग अ लॉन्गर पेबल आउटस्टैंडिंग इज बेटर. जितने ज़्यादा डेज लगेंगे हमें पैसा पे करने के लिए, उतने ज़्यादा डेज के लिए हमें हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की नीड्स पूरी होगी. सो DPO सर्व्स एज अ शॉर्ट टर्म फंडिंग सोर्स. Now how to calculate how many days are outstanding? Simple, creditors turnover ratio निकालो based on credit purchase. Why credit purchase? क्योंकि वही purchase को consider करना है जो हमने credit पे की. कैश भी थी तब तो कोई point of discussion ही नहीं है. And consider the average trade payables because it might have happened कि साल के शुरू में कुछ होगा, साल के एंड में कुछ होगा, in between we might have paid back और या ज़्यादा credit terms मिली होंगी या वेव ऑफ भी हुआ होगा. तो सबको नलीफाई करने के लिए एवरेजिंग कर लिया. 365 बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, हमारे पास डेज पेबल रेशियो आ गया. नाउ सेम डिस्कशन, मोस्टली बेस्ड ऑन कॉमन सेंस. कितना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रखना है, कितने ज़्यादा लंबे डेज की साइकिल रखना है इज गुड और बैड. हैविंग इट टू हाई और हैविंग इट टू लो. Too high is good for us. Think from your point of view. It's the best thing you can have because delaying the outflow is like having savings. It's like having a short-term source of finance for you. It might reflect a sign of bankruptcy as well because if you are not able to pay back, say कुछ agreement हुआ था 25 days का, you are not able to pay for 35 days, 50 days, then 80 days. भाई क्या चल रहा है? You might not be as credible as earlier, right? और एल्स यू माइट बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटिंग पावर कि अच्छा खासा नेगोशिएशन चल रहा है, सामने वाली पार्टी को भी कोई इशू नहीं है एंड हमारा भी DPO हाई हो रहा है. टू लो होने का तो समझ में ही आ रहा है कि कैश क्रंच हो सकता है या शॉर्ट बैलेंस हो सकता है. अगर आपको जल्दी जल्दी पे करना पड़ रहा है, इट मीन्स दैट यू डोंट हैव अ ट्रस्ट इन द ऑपोजिट पार्टी, राइट. यू आर लूजिंग योर कैश, आप कैश बैलेंस उतना मेंटेन नहीं कर पाते, आपको जल्दी पे करना पड़ता है, आपको कोई उधारी नहीं देता मार्केट में. ये सब तो ठीक है, लेकिन ये ना और डेडली हो जाता है जब ये इनके साथ कंबाइन हो जाता है, DSO, DIO एंड DPO, जिसको हम लाइक DPO का क्वेश्चन करने के बाद चेक करते हैं, राइट. सो व्हाट आर द क्वालिटेटिव थिंग्स यू कैन लुक फॉर जब आपको DPO मेंटेन करना है? क्या करोगे? सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करो, इंटरनल अलाइनमेंट करो सो दैट यू माइट नॉट फॉल शॉर्ट इन पेमेंट, रेपुटेशन एंड ट्रस्ट बिल्ड करो एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी और क्रेडिबिलिटी इतनी रखो कि आपको उधारी मिलती भी रहे एंड साइकिल भी लॉन्ग करो. नाउ थिंक, जो यहाँ पे हमने डिस्काउंट दिया था ना, अब वही डिस्काउंट हमें मिलने वाला है बिकॉज अब हमारी चांस है पे करने की. यहाँ पे हम क्या थे? प्रोवाइडर ऑफ डिस्काउंट थे, यहाँ पे हम रिसीवर ऑफ डिस्काउंट है. सो व्हेन यू कम ऑन द ईदर साइड ऑफ टेबल, जब आपको डिस्काउंट मिल रहा है, देन यू हैव टू चेक आउट कि क्या ये डिस्काउंट मेरे लिए उतना वर्थ इट है भी कि नहीं. सपोज एक बोरोवर था जिसने परचेज किया क्रेडिट पे, उसको एक डिस्काउंट मिला, उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? पहले तो ये सोचेगा कि यार अच्छा है डिले हो रहा है, बट ये सोचेगा कि यार डिस्काउंट मिल रहा है, अगर जल्दी दे देता हूँ तो मेरा जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का सोर्स है वो ख़त्म हो गया. पर ऐसा भी हो सकता है कि जल्दी देने से क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स तो होंगे, बट कितना जल्दी देना चाहिए और क्या जो डिस्काउंट मिल रहा है वो उतना वर्थ इट है? फॉर एग्जाम्पल द सेम डिस्काउंटिंग टर्म्स ऑफ 2/10 नेट ऑफ 30. अच्छा, इसको रीड कैसे करते हैं? 10 दिन में पैसा दे दिया तो 2% का डिस्काउंट, अदरवाइज 30 डेज में तो पैसा देना ही है.
जो उसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्काउंट है वही तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ रीपेइंग होगा अर्ली। तो मेरी पॉकेट से कितना जा रहा है 20, कितना अल्टीमेटली जा रहा है 98, सॉरी दिस इज माई सेविंग्स, दिस इज अल्टीमेटली गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट एंड ये तो एनुअली कन्वर्ट करने के लिए। तो आई एम लूजिंग 37.25% पर एनम ऑफ कॉस्ट जो मेरे को एक सोर्स ऑफ फाइनेंस को देनी पड़ सकती थी अगर मैं अपना डिस्काउंट यूज़ करता हूँ। तो अभी तक मेरे को फ्री में मिल रहा था, लेकिन अगर मैंने ये डिस्काउंट छोड़ा या लिया तो मेरा 37.25% का पर एनम अज्यूम्ड खर्चा हो जाएगा, राइट। बट एक और कंडीशन, yeah, sorry, there was an issue. So continuing here, we are on the other side of table. हमें किसी ने डिस्काउंट का ऑफर दिया है। अज्यूमिंग दो तरीके के डिस्काउंट ऑफर्स हमारे पास है। फर्स्ट इज डिस्काउंट 2/10 नेट ऑफ 30 एंड द अदर इज 0.5/10 नेट ऑफ 30। ऑन फर्स्ट इंस्टेंस रिमूविंग ऑल दीज नंबर्स एंड कैलकुलेशंस, हमें क्या समझ में आ रहा है कि यार 10 दिन में देते हैं तो यहाँ पे 2% का डिस्काउंट है और यहाँ पे 0.5% का डिस्काउंट है। तो इन अ लेमैन्स लैंग्वेज हमें तो ये वाला डिस्काउंट ले लेना चाहिए और ये वाला क्लियरली इग्नोर कर देना चाहिए, राइट। क्योंकि यहाँ 2% मिल रहा है, यहाँ 0.5% मिल रहा है। बट when you are at a C4 level, and this is not about some thousands or lakhs of rupees of discount, it's about crores. So you cannot make decision in silos. You have to compare it with a decent benchmark जो कि आपका एक फाइनेंस के सोर्स का प्रोवाइडर हो, which is the weighted average cost of capital, right? So let's do the basic maths. And assuming कि हम ये डिस्काउंट मिल रहा है तो इट इज़ काइंड ऑफ पोटेंशियल सेविंग्स फॉर अस, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो कॉस्ट फॉर अस क्योंकि हम रीपे कर रहे हैं। हम यही पैसा बाहर से उठाते तो हमें कॉस्ट लगती, ये हमें फ्री में मिल रहा है, लेकिन रीपे कर दिया तो वो फ्री का सोर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन नथिंग कम्स फॉर फ्री। इफ वी repay on time we are losing on discount, and if we pay on time we are gaining on discount. So this cost and benefit analysis तो हमको करना पड़ेगा ना, right? So how much can be the potential savings or hypothetical cost of repaying? In this case हम 2 रुपये लूज कर रहे हैं या 2 रुपये गेन कर रहे हैं, सॉरी, ऑन 98 रुपीज़ हमारी पॉकेट से जा रहा है 365। 20 क्यों? क्योंकि वी आर पेइंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द क्रेडिट पीरियड विच इज 10th डे, तो रिमेनिंग आर 20 days। सेम गोज हियर, वी आर गेनिंग 0.5 इन हैंड, हमारे पास से 99.5 जा रहा है एंड दिस इज टू कन्वर्ट इट टू पर एनम। सो यहाँ पे हमारी पोटेंशियल सेविंग्स हो रही है 37.25% की, या यू कहो हमारी जो कॉस्ट ऑफ रीपेइंग है दैट इज 37.25%, एंड यहाँ पे इट्स 9.17%, राइट। Assuming our weighted average cost of capital to be 10%, assuming it to be 10%, यहाँ पे हम कितना बचा सकते हैं 37.25, मच बेटर टू रीपे बिकॉज तुम्हारे पास जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है ना दैट इज चीपली अवेलेबल एट 10%, सो यू कैन सेव अ लॉट हियर, राइट। एंड अगर हम इसको एज अ कॉस्ट ऑफ रीपेइंग भी अज्यूम करें तो यार 37 पे उधार लेना ज़्यादा महंगा है कि 10 पे लेना? ऑब्वियसली 37.25% पे लेना, तो इट्स बेटर टू रीपे। इसके साथ कॉन्ट्रास्ट करेंगे तो शायद बेटर समझ में आए कि जब वैक हमारा 10% है, यहाँ पे हमको 9.17% की पोटेंशियल सेविंग्स हो रही है। वी आर सेविंग 9, वी आर पेइंग 10, सेव 9 पे 10, सेव 9 पे 10, कॉस्ट बेनिफिट देखें तो यार कॉस्ट ज़्यादा है। So it's better to not repay and keep it with yourself because this is your cost of financing for short term. This is your short term financing cost per annum and this is your WACC per annum. कहाँ पे सस्ते में उधारी मिल रही है 9.17% पे compared to 10%. So it's better to not repay, keep it with yourself and use it in your business or operations. Now assume कि weighted average cost of capital और कम हो गई and it is clearly 7%. इस केस में तो डिसीजन नहीं ही चेंज होगा यार, क्योंकि 37 और 7 में तो 37 ही बड़ा है, ये तो बहुत महंगा सोर्स ऑफ फाइनेंस है और बेनिफिट ज़्यादा दे रहा है तो पे कर दो, बेटर टू रीपे। लेकिन अब 7 और 9, 9 हम पोटेंशियली सेव कर सकते हैं, काइंड ऑफ बेनिफिट हो सकता है, और 7 पे तो हमको फाइनेंस मिल रहा है, तो हम 9 वाले सोर्स ऑफ फाइनेंस के पीछे क्यों जाएंगे? तो इट्स बेटर टू रीपे बिकॉज हमारे पास और ज़्यादा चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस इज अवेलेबल एंड अल्टीमेटली हमने डिसाइड कर लिया टू रीपे। ओनली दिस केस where your discount margin is less than the weighted average cost of capital. So when you are on the either side of table, जब आपको डिस्काउंट का ऑफर मिल रहा है तब आपको इस लेंस से भी सोचना है कि वो आपके लिए एक पोटेंशियल सेविंग्स है एज वेल एज वो आपके लिए एक सोर्स ऑफ फाइनेंस भी है। सोर्स ऑफ फाइनेंस है तो कॉस्ट होगा, कॉस्ट है तो इसको एक ओरिजिनल सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट से कंपेयर भी करना पड़ेगा एंड देन यू कैन मेक अ डिसेंट डिसीजन।
So this was it for the working capital management. This is a contrasting table of कि DSO, DIO और DPO में क्या कम ज़्यादा होता है तो उससे क्या like inference निकाल सकते हैं. This is self explanatory. And for some random questions I have this कि हमने कैश कन्वर्जन साइकिल के बारे में तो देख लिया ना, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी देख लिए कि ये डेज ऑफ सेल्स आउटस्टैंडिंग से बनता है, डेज ऑफ सेल इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग से बनता है एंड पेबल आउटस्टैंडिंग से बनता है. तो अल्टीमेटली सोचो कि हमारे पास इतना पैसा मिलने को है, इससे यहाँ 10 है, यहाँ पे 15 है एंड हमें देना भी खुद तो भी 8 डेज में. तो हमारा जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो कितना बना, ऑलमोस्ट 17. तो हमारे पास जो गुड्स है ना वो 17 डेज में हमारा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उनको कैश जनरेट करके देता है, राइट. तो ऐसे साल में कितनी साइकिल्स हो सकती हैं, तो 365/17 कर सकते हैं. नाउ थिंक ऑफ कैश कन्वर्जन साइकिल फॉर दीज प्लेयर्स. डीमार्ट, क्या डीमार्ट कभी उधार पे सेल करते हुए देखा है? नहीं करता. डीमार्ट की जो इन्वेंट्री रोल आउट है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, एक्सेप्ट फॉर द सम एसकेयूज जो हमने देखा लार्ज वाले के लिए नुकसान होता है. एंड जो डीमार्ट का डीपीओ है ना दैट्स वेरी हाई, उसका डीएसओ कम है, उसका डीआईओ भी कम ही है ऑलमोस्ट एंड उसका डीपीओ बहुत ज़्यादा है. तो इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग? इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि उसको एक सोर्स ऑफ फाइनेंस मिल जाता है बहुत ईजीली एंड उसको कोई बहुत खास कॉस्ट भी नहीं लगती बिकॉज इट हैज़ एन अपर हैंड व्हेन इट कम्स टू बार्गेनिंग, राइट. फॉर स्विगी एंड जोमेटो, स्विगी एंड जोमेटो क्या कभी उधार पे सेल करते हैं? नहीं. तो इनका भी डे सेल्स आउटस्टैंडिंग बहुत कम है. डेज इन्वेंट्री, क्या ये खाना खुद मेंटेन करके रखते हैं? नहीं. तो इनका इन्वेंट्री भी कम है. लेकिन डीपीओ इनका भी ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि जो भी रेस्टोरेंट्स या वेंडर्स होते हैं उनको इंस्टेंटली पे नहीं करते हैं, कुछ वीकली या मंथली साइकिल होता है एज पर द अग्रीमेंट. अगेन इट्स गुड फॉर देम बिकॉज दे हैव अ कैश कन्वर्जन साइकिल विच इज ऑलमोस्ट नेगेटिव. कि ये तुरंत कैश कन्वर्ट लाइक इनके पास आ जाता है बट इनको देने में बहुत टाइम है. दैट्स अ गुड थिंग ना. सेम गोज विथ एनी ई कॉमर्स प्लेयर. लोकल किराना स्टोर का डीएसओ बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि उसको सामान बेचने के लिए उधार पे देना ही पड़ता है. डीआईओ भी ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द कस्टमर जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, क्या प्रोडक्ट बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है और दैट. डीपीओ इज ऑल्सो हाई बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. तो लाइक क्या ही डिसीजन होगा इस केस में वो तो नंबर देख के पता चलेगा. फॉर एन आईटी कंपनी दे डोंट हैव एनी डीआईओ. डे सेल्स आउटस्टैंडिंग कैन बी हाई एंड डेज पेबल आउटस्टैंडिंग, इनका क्या ही परचेज होता है. ये कुछ तो भी लाइसेंस वगैरह परचेज करते होंगे या कुछ तो भी टूल्स परचेज करते होंगे, तो दे माइट बी परचेजिंग इंस्टेंटली. एंड इनकी जो बिलिंग होती है ये भी एडवांस में ही करते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू बाय कैनवा, तो कैनवा एनुअली बिल कर लेता है ऑन मंथली बेसिस. तो वो चाहता है कि आप उसको जल्दी से जल्दी पैसा दे दो, इसलिए वो आपको काइंड ऑफ डिस्काउंट देता है. तो दीज आर द रियल लाइफ एग्जाम्पल जहाँ पे आप डिस्काउंट के बारे में सोच सकते हो. फॉर इंडियन रेलवेज दे ऑल्सो हैव अ डी एस ओ वेरी लो, क्योंकि वो उधार पे थोड़ी टिकट बेचते हैं, इन्वेंट्री कुछ है नहीं. लेकिन जो भी इनके वेंडर्स होते हैं से फॉर डीजल कॉन्ट्रैक्ट्स और फॉर इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स दे हैव अ वेरी हाई नेगोशिएटिंग पावर एंड डीपीओ ज़्यादा होता है. दैट्स व्हाई दे ऑलवेज हैव कैश इन हैंड, राइट. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट? सबसे पहला तो यही डिस्काउंट का मार्जिन कैलकुलेट करो एंड पर एनम इफेक्टिवली वो कितना कॉस्ट करता है हमें. तो both from the debtors perspective and the creditors perspective we calculated. Now I have a particular question for cash management which is this: